Hello students, welcome to economic class and this is video number 17, theory of demand. Today we have started theory of demand in the previous two videos and the topic is continue. Today we are going to discuss about the very important law of theory of demand, that is law of demand. But before proceeding further in this video, let me remind you the topic which we have already discussed in the previous two videos. So in the first video, that was video number 15, we have discussed about the demand, individual demand, market demand, individual demand curve, market demand curve. In the next video we have discussed about the functions of demand. In that video we discussed about the determinants of demand, right? And here in this video we are going to discuss about the law of demand, the law related to demand. Children, if you say that this is the, we can say that simplest law of demand. Children, whenever in the previous video we were discussing about the determinant of demand, the first determinant of demand was price. Price play a very important role for deciding the demand or quantity demanded by the consumer, either as an individual level or at the market level. So this law is also, children, related to price and quantity demanded directly, right? So let's see what is the law of demand. Before proceeding further, children, see, I have written the point on which we have to discuss. First is law of demand, second is assumptions of the law of demand, and after that we will discuss why does demand curve slope downward, right? These are the reason, and we have some exceptions to the law of demand also. First of children, let us start law of demand. It states that other things remaining constant, right, keeping the other factors constant. Whenever we are going to study law of demand, except price, we have to keep all the other factors constant. Other factor means income, taste and preferences, future expectations, distribution of income, number of population, etc. Only price can be fluctuate, keeping other factors constant. So let us see, it states that other things remaining constant, there is an inverse relation between quantity demanded and own price of the commodity, right? The definition very simple, children, but in a very simple word you can say there is an inverse relationship between price and quantity demanded. Inverse means just opposite, right? For example, this is price and this is quantity demanded. When price increases, quantity demanded decreases. When price decreases, quantity demanded increases. This is called, children, inverse relation, or we can say opposite relation between price and quantity demanded. When one thing is increasing, other thing is decreasing. So this relation is known as in economics as a law of demand. So children, this is the very simple law of demand. There is inverse relation, but children, whenever we are studying this law of demand, we have to keep other things constant. Means other factors should not be changed, they must be constant. Let us see. So children, you can see, I will clear this law with a table. So for example, let's take, this is the price and here is a demand, right? You can see as the price increases, price, let's take 10, 20, 30, 40 and 50. So you can see that price is increasing by 10 rupees. At price 10, quantity demanded is 500. At 20, 300, then 100, then 50 and then 10. So as price increasing, quantity demanded decreasing, and when price decreasing, quantity demanded increasing. So there is an inverse relation, or we can say there is a opposite relation between price and quantity demanded, and this relation is called law of demand. I hope you must understood. Next, children, assumptions of the law of demand. Whenever we are studying law of demand, we have to take some assumptions. What are these assumptions? These assumptions are the situation which we have to keep constant. In the beginning of the law of demand, children, I told you that whenever we study the law of demand, we have to keep some other factors, means except price, other factors must be constant. So these are called as assumptions. What are these? First assumptions is
taste and preferences of the consumer remains constant. Children, in the previous video, whenever we were discussing about the determinant of demand, or you can say functions of demand, so in that video we have discussed that the taste and preferences of the particular commodity when increases of the consumer, they increase the demand, but the taste and preferences of any particular commodity when decreases, they decrease the demand. कहने का मतलब ये कि जब किसी commodity का टेस्ट और प्रेफरेंस, टेस्ट हमें अच्छा लगता है तो हम उसको प्रीफर करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर डिमांड इंक्रीजेज इन द मार्केट. सो हियर वी हैव टू कीप टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट. हमें जो कमोडिटी है उसका टेस्ट और प्रेफरेंस फिक्स रखना है, चेंज नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट assumptions in children, there is no change in income of the buyer. Buyer means consumer. The income, the salary of the consumer and buyer must be constant, must not be increased or decreased. Next is prices of the related goods do not change. You know, price related, there are two types of price related: substitute good and complementary goods, right? So when the price of given commodity increases, demand for other goods also increases. When the price of the given commodity decreases, quantity demanded for other also decreases. This is called substitution good, which the goods which are substituted for each other, for example Coke and Pepsi, pen and apple and oranges, ball pen and ink pen. Next was, children, complementary goods. Complementary goods are those goods which are demanded together. For example, pen and refill, bread and butter, car and petrol, they are demanded together. So in this case, when price of one given commodity decreases, the demand for other goods also decreases, right? When price for this given commodity increases, demand for other commodity also decreases. So this type of relation is called related goods. So they must also, the price of related goods do not change, they must be constant. Consumer do not expect any significant change in the availability of the commodity in the near future, right? The availability of the commodity must be same as in the current situation it is, okay? It should not be expected that in the future the price or the supply of this commodity is going to be changed, increase or decrease. So these are the assumptions, children, to make the law good, or we can say to make the law true. We have to keep these assumptions. These are the situations which must be kept constant to make the law true. I hope you must understand, children. After that, let us discuss the next point: why does demand curve slope downward? Children, again I would like to remind you the points which we have discussed in the previous video, right? In that video we have discussed about the individual demand curve, market demand curve. In that video I have showed you the demand curve. These are the axis, y axis, x axis, point of origin. This is, children, demand curve, dd. Here we represent, on the y axis we represent price, and on the x axis we represent quantity. If you will see this demand curve carefully, you will see it is sloping from left to left to right. This type of sloping is called as downward sloping demand curve, right? This downward sloping demand curve showing the negative relation between quantity demanded and price. It means when, you can say, when price increasing, okay, quantity demanded decreasing. So there is inverse relation. Let's see. For example, this is the demand at price P, right? OQ quantity is demanded. When price will increase, for example, price increases from P to P1, what will happen? Let's see, right? It will intersect the demand curve here, and you will see price is increasing, quantity demanded is increasing, right? And let's see, एक हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है P से, ये P2 हो जाती है, यहाँ पर आ जाती है, तो क्या होगा? ये इसको यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, तो ये हो गया हमारा E, ये हो गया हमारा E1, ये हो गया हमारा E2. तो आप देखोगे जब प्राइस कम हो गई तो हम क्वांटिटी डिमांड को ज़्यादा कर रहे हैं, हम Q2 पर आ गए हैं, तो इधर शिफ्ट हो रहा है और इधर शिफ्ट हो रहा है. दिस रिलेशन इज नोन एज, चिल्ड्रन, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, और यू कैन से इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. I hope you must have understood. Children, this question can be asked in other manner also. Why more goods are demanded when price decreases?
दिस इज क्वेश्चन सेम बट दे हैव सेम मीनिंग। इस क्वेश्चन का मतलब वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, कि हमारा जो डिमांड कर्व है, ये जो डिमांड कर्व आप देख रहे हो डी डी, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों है ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, जब प्राइस कम होगी तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, प्राइस इंक्रीज होगी हम डिमांड कम करेंगे, तो इसका शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड और रोटेशन है लेफ्ट और राइट। इसका एक और क्वेश्चन ये है चिल्ड्रन कि वाई वी डिमांड मोर व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, कि हम किसी कमोडिटी की डिमांड तब ज़्यादा क्यों करते हैं जब उसके प्राइस कम हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, दोनों मैंने आपको मेथड बता दिए हैं। फर्स्ट रीजन की डिस्कस हम लोग कर लेते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चिल्ड्रन इन द सेकेंड चैप्टर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जब हम किसी कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाते हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है चिल्ड्रन हमें कम मिलता है, जो हमें यूटिलिटी मिलती है वो लगातार कम होती जाती है विद द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ एनी पर्टिकुलर कमोडिटी। तो चिल्ड्रन होता क्या है कि जब हम कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते जाते हैं तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन लेवल कम मिलता है। तो जब किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन लेवल कम मिल रहा है तो हम उसके लिए प्राइस भी कम पे करना चाहते हैं, हम ज़्यादा प्राइस पे करना नहीं चाहते। तो इसीलिए क्या होता है कि जब उस कमोडिटी के प्राइस कम हो जाते हैं तो हम उस कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा कर देते हैं, हम उसको ज़्यादा परचेज करने लगते हैं, क्योंकि अब हम ज़्यादा उसके लिए पे करने के लिए तैयार नहीं, तो हम उसकी ज़्यादा डिमांड तब करेंगे जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा चिल्ड्रन। नेक्स्ट चिल्ड्रन इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ चिल्ड्रन। यहाँ पर उस इनकम से नहीं है जो एक पर्सन को काम करने के बदले मिलते हैं, या हम ये कहें कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की या कंज्यूमर की जो इनकम है 10,000 है तो 10,000 से 11,000 हो रही है या 10,000 से 9,000 हो रही है। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इनकम विच ही इज अर्निंग। हम यहाँ पर चिल्ड्रन बात कर रहे हैं डिस्पोजेबल इनकम की, कि अगर किसी पर्सन की इनकम है 1,000 और मार्केट में किसी कमोडिटी का प्राइस है 100 रुपीज़, तो वो उसकी 10 यूनिट परचेज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके यही प्राइस कम हो जाएंगे, मान लो इसका प्राइस हो गया ₹50, तो क्या होगा, इसकी डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो वो 10 यूनिट परचेज कर पा रहा था अब उसकी वो 20 यूनिट परचेज कर पाएगा। कहने मतलब ये है कि जब कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। इसी को कहते हैं चिल्ड्रन इनकम इफेक्ट, कि जो चीज़ हम पहले कम परचेज कर पा रहे थे अब उसका प्राइस कम हो गया है तो हमारे पास अब पैसे खर्च करने के लिए ज़्यादा बच रहे हैं, तो हम उसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं। दिस इज द रीजन डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। टू रीजन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अभी हम लोग सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की बात कर रहे थे चिल्ड्रन। सब्सटीट्यूशन गुड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, तो उन दोनों में क्या होता है कि मैं यहाँ पर दो गुड की बात करूँ अगर, कि यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ टी एंड कॉफ़ी की, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। अगर चिल्ड्रन टी के प्राइस कम हो जाते हैं, प्राइस ऑफ टी डिक्रीजेस, तो क्या होगा कि जो टी है वो कॉफ़ी के कंपैरिजन में चीपर हो जाएगी, तो जो लोग कॉफ़ी पहले ड्रिंक करते थे वो टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और टी की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो चिल्ड्रन ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जब गिवन कमोडिटी के प्राइस कम हो जाते हैं तो वो कंज्यूमर जो पहले दूसरी सब्स्टिट्यूशन गुड को कंज्यूम करते थे अब वो भी इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया है। तो अगर हम कंपेयर करें इसके तो इसका प्राइस ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसका प्राइस जब कम हो जाएगा तो इसके कंपैरिजन में ये चीपर हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो जो लोग कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे थे वो लोग भी अब शिफ्ट हो जाएंगे टी की तरफ, तो टी की डिमांड ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा चिल्ड्रन। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। यहाँ पर चिल्ड्रन साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का कहने का मतलब ये है कि वो ग्रुप जिनकी इनकम उस लेवल तक नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूं कि एक पर्सन की इनकम है 10,000, ठीक है ना, और वो एक एलईडी टीवी लेने जाता है। एलईडी टीवी की जो प्राइस है वो मान लीजिए हम कहते हैं कि वो 11,000 है, ठीक है ना। तो अगर ये पर्सन 10,000 रुपये लेकर जाएगा एलईडी परचेज करने के लिए तो उसकी इनकम कम हो जाएगी, लेकिन कमोडिटी का प्राइस तो 11,000 है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस एलईडी का जो प्राइस है जो 11,000 है वो हो जाए मान लो 9,000 या ये हो जाए 10,000,
तो अब ये जो एलईडी टीवी है इसके इनकम के रेंज में आ जाएगा। तो पहले वो लोग जिनकी इनकम सिर्फ 10,000 थी और उसकी वजह से वो एलईडी टीवी 11,000 का परचेज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो जब इसका प्राइस कम हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, तो ये कमोडिटी इनके इनकम रेंज में आ जाएंगे। तो वो लोग जिनकी इनकम 10,000 से ज़्यादा थी वो तो ऑलरेडी एलईडी टीवी 11,000 में परचेज कर ही रहे थे, लेकिन अब वो लोग भी परचेज करने लगेंगे जिनकी इनकम सिर्फ 10,000 थी या उससे भी कम थी, क्योंकि कमोडिटी का प्राइस चिल्ड्रन कम हो गया है। तो इससे क्या होता है चिल्ड्रन, कंज्यूमर का जो बेस है, कंज्यूमर ग्रुप, उन लोगों की इनकम रेंज में भी आ जाता है जिनकी इनकम पहले उतनी नहीं थी लेकिन अब उनकी रेंज में आ गया है, तो वो लोग भी उसको परचेज करने लगते हैं। तो जो उसको पहले से परचेज कर रहे थे जिनकी इनकम हायर थी तो उतनी डिमांड तो है ही है, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हो गए तो वो लोग भी परचेज कर पा रहे हैं जिनकी इनकम रेंज में वो आ गया है। तो बिकॉज ऑफ दैट कि कमोडिटी की डिमांड जो है चिल्ड्रन इंक्रीज हो जाती है प्राइस के कम होने पर। नेक्स्ट चिल्ड्रन डिफरेंट यूजेज। डिफरेंट यूजेज का चिल्ड्रन यहाँ पर मतलब ये है कि हम ऐसी मार्केट से बहुत सारी चीज़ें परचेज करके लाते हैं जिसके डिफरेंट हम यूजेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम पेट्रोल से आप कार चला सकते हैं, जनरेटर चला सकते हैं और भी बहुत सारे यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मिल्क है, मिल्क से आप टी बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, सो मैनी यूजेज आर देयर। तो क्या होता है कि जब ऐसी कमोडिटी कि जिसको हम डिफरेंट यूज में ले सकते हैं, जब इनके प्राइस कम हो जाते हैं चिल्ड्रन, तो पीपल उनको डिफरेंट यूज में यूज करने लगते हैं। तो प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है कि पहले मैं 1 लीटर मिल्क परचेज करता था, ठीक है, और उसको मैं प्राइम यूज में लेता था कि मैं उसे चाय बनाऊंगा या मैं उसको ड्रिंक करूंगा या कॉफ़ी बनाऊंगा, लेकिन अब मिल्क के प्राइस कम हो गए हैं तो मैं उसको और यूज में लूँगा। मैंने क्या किया, मिल्क मैं पहले 1 लीटर लेता था, प्राइस कम हो गया, मैं 2 लीटर परचेज करता हूँ, तो मैं उससे कर्ड भी बनाता हूँ, दही भी बनाता हूँ, पनीर भी बना रहा हूँ, बटर भी बना रहा हूँ, खीर भी बना के खा रहा हूँ। तो क्या है कि जब प्राइस किसी कमोडिटी कम हो जाती है तो उसके चिल्ड्रन हम और ज़्यादा डिफरेंट यूज में करने लगते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट देयर डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज एंड दिस इज द रीजन डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। आई होप चिल्ड्रन दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। बट चिल्ड्रन ये जो लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ नॉट ट्रू दैट इट इज़ नॉट क्लियर दैट दिस लॉ इज़ ट्रू एवरीवेयर, कि ये लॉ हर जगह ट्रू नहीं है, ऐसा हर जगह नहीं होता है। कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं कि जहाँ पर ये लॉ ट्रू नहीं है, कि जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा कि जब प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। लेकिन जिन्हें ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पर ये लॉ ट्रू नहीं होता है, तो जहाँ पर ये लॉ ट्रू नहीं होगा उसको हम कहते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। आप देख सकते हैं मैंने लिख भी रखा है। फर्स्ट चिल्ड्रन आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। चिल्ड्रन सोशल प्रेस्टीज की चीज़ जिससे कि आपकी समाज में आपकी एक अलग स्टेटस बन जाए, ऐसी चीज़ों की चिल्ड्रन मार्केट में डिमांड तभी होती है जब उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हों। फॉर एग्जांपल कि मैं बात करूं एप्पल फ़ोन की। अब एप्पल फ़ोन क्यों है और रेडमी फ़ोन क्यों है? क्योंकि प्राइस की वजह से। अगर आप सोचो कि एप्पल के मोबाइल भी 10-10 हज़ार के मिलने लगे, 15-15 हज़ार के मिलने लगे, तो नॉर्मल पीपल जो अभी रेडमी यूज करें वो भी एप्पल मोबाइल यूज करने लगेंगे, ठीक है ना। तो फिर एप्पल जो है सोशल डिस्टिंक्शन की चीज़ नहीं रहेगी, दिखावे की चीज़। या इसकी जो आप देखा है ना कि जिसके पास एप्पल के मोबाइल होते हैं बड़े, और उनमें एक एटीट्यूड होता है कि मैं एप्पल का मोबाइल, वो फ़ोन भी ऐसे करते हैं ताकि उसका लेबल दिखाई पड़े और सामने वाले को पता चल जाए कि अगला बंदा जो है एप्पल मोबाइल यूज कर रहा है। इसी तरीके से चिल्ड्रन आपने देखा होगा कि विंटेज कारें होती हैं, डिजाइनर एयरक्राफ्ट होते हैं, लोग अपना ऑर्डर दे के बनवाते हैं। तो जो चिल्ड्रन सोशल डिस्टिंक्शन यानी दिखावे की चीज़ों जिससे कि उनकी समाज में प्रेस्टीज जो इज्जत बढ़े, सम्मान बढ़े, उनका स्टेटस बढ़े, ऐसी चीज़ों की चिल्ड्रन डिमांड, अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो उनकी डिमांड ज़्यादा हो। जैसे कि डायमंड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन की चीज़ें होती है चिल्ड्रन। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि इसकी प्राइस कम हो गई तो लोग इसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, नहीं। इसकी अगर प्राइस कम हुई तो लोग इसकी डिमांड कम करेंगे, जब प्राइस ज़्यादा होगा तभी इसकी लोग डिमांड करते हैं। आई होप कि ये चिल्ड्रन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन जिफिन गुड्स। जिफिन गुड्स आर दोज गुड्स और हाईली इन्फीरियर गुड्स। वो गुड्स चिल्ड्रन जिनकी क्वालिटी लो क्वालिटी की गुड होते हैं, जो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इनका जो इनकी जो डिमांड होती है चिल्ड्रन की, जब किसी की इनकम इंक्रीज होती है तो इसकी डिमांड, इसमें भी इसमें क्या है कि हाईली अपोजिट रिलेशन होता है कि जब इनके प्राइस कम हो जाते हैं चिल्ड्रन तो हम इनकी डिमांड भी कम कर देते हैं, और जब इनकी प्राइस इंक्रीज होती है तो हम इनकी डिमांड भी
इंक्रीज कर देते हैं। क्यों इसके डिक्रीज कर देते हैं? क्योंकि ये इन्फीरियर गुड्स होते हैं कि जब हमारी इसके प्राइस कम हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये क्यों खरीदे, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम वो गुड परचेज करेंगे जिनकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो इसीलिए जब इनकी प्राइस कम हो जाती है तो हम इसकी डिमांड कम कर देते हैं, प्राइस इंक्रीज होती है तब हम इसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो इसमें भी चिल्ड्रन लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन इरेशनल जजमेंट, कि आपका जो जजमेंट है चिल्ड्रन वो इरेशनल हो गया। कि मान लीजिए आप मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने गए और आपको एक्चुअल मार्केट में जो प्राइस है उसके बारे में पता ही नहीं है, तो जो शॉपकीपर है उससे जो आपने सामान परचेज किया वो आपसे हाई रेट पर वो सामान आपको बेच देगा और आप उसको लेकर चले आएंगे। तो यहाँ पर भी आपको चिल्ड्रन, जबकि वही चीज़ दूसरी जगह पे कम प्राइस में मिल रहा है और आपको एक्चुअल प्राइस के बारे में पता ही नहीं है, तो आप हाई प्राइस पर ही वो सामान परचेज करके चले आएंगे। तो यहाँ पर भी चिल्ड्रन अगर आपका जजमेंट ही इरेशनल हो गया कि आपने इरेशनली जजमेंट नहीं कर पाया तो आप हायर प्राइस पर ज़्यादा डिमांड करके चले आएंगे, जबकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस कम होगी तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो आई होप चिल्ड्रन कि लॉ ऑफ डिमांड आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 11th 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपके पास इकोनॉमिक्स एज ए 5th सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मेन होगा, और ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो आपके पास एज ए 5th सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जिनके पास 5th सब्जेक्ट है या जिनके पास ये प्राइम सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उनको इकोनॉमिक्स के 11th और 12th दोनों क्लास के दोनों बुक्स के रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे विद कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, तो आप वॉच करिए और अपने कमेंट भी लिख के हमें भेज सकते हैं। आई विल प्रोसीड फर्दर। सो टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।